Hello students, today I am going to teach you a very important topic of English language, the function of language. So related to this topic, this question has been asked many times in the university exams. What are the functions of English language? It is very common question and very important question. So I am giving you the full detail of the functions of language. As we know, we also use the language to express our ideas. So language plays an important role in human life. The hard fact is that human life has been made better by the use of language. Language is means of expression. It helps in the process of communication. The human life would have been quite different. There are so many functions of language, but I have written here some very important functions of English language. I have written here functions of language. Although all these points are related to the language, but I am going to teach you about the functions of language, especially in the reference of English. So the first function is expressive function. Every person has some feelings, emotions, ideas, and he or she wants to give an outlet to those experiences of life. By using a language, the individual is able to express his views. Language thus helps in process of expression between the two individuals. दोनों लोगों में वार्तालाप कराने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए ये काम करेगा. Come on the second point, informative function. Suppose I have some information with me and I ask to my brother to pass on the information to the parents. Suppose this is A and this is B. Both are brother. He wants to say something to B to convey the message to father. Okay. So when A speaks some ideas to B and B understand what A is saying and what I am to convey to my father, so he will pass on the message to the father that the brother A is saying some and that. ये दोनों लोग आइडिया को पास करेंगे तो इंफॉर्मेटिव फंक्शन का भी काम करेगा. इसने इंफॉर्मेशन भाई को दी, भाई ने फादर को दी, तो इंफॉर्मेटिव में भी काम करता है ये फंक्शन. टीचर क्लासरूम के अंदर बहुत सारी सिचुएशन को देखता है, रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन का. हाँ, टीचर पढ़ाता तो है ही है, लेकिन इंफॉर्मेटिव के रूप में काम करता है, ध्यान रखना. So he will be able to do so only with the help of the language. और वो इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच जाती है और बच्चे उसको समझ लेते हैं. Now come on the third point, the directive function. डायरेक्टिव फंक्शन के अंतर्गत तो ये दिशा निर्देश देने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, निर्देश देने के लिए. When you are going on road and at crossing you saw the red light. Red light means stop. आप खड़े हो जाएंगे. When light is green, what will you do? Go on. आप चल देंगे इसी तुरंत. ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या कर रही हैं? It is not a just communication of information. He is rather directing the whole traffic to stop and go all the movements. तो ये चीज डायरेक्ट करती है. नेक्स्ट आता है इंटरैक्टिव फंक्शन.
इंटरेक्टिव का मतलब है अंतः क्रिया होनी चाहिए उनके अंदर, बोथ पक्ष, दोनों साइड, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। इट इज नॉट ए वन वे प्रोसेस, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, इट हैज बोथ वे कम्युनिकेशन। बोथ वे कम्युनिकेशन इज नोन एज इंटरेक्शन। अगर सिंगल साइड का हो जाएगा तो ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, इंटरेक्टिव नहीं होगा। द रेडियो, टेलीविजन आर द मीडिया ऑफ वन वे कम्युनिकेशन वाइल टेलीफोन हैज बोथ वे कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखना, अगर आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये वन साइडेड के कम्युनिकेशन के हैं। और अगर आप अपने फोन पे, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो मोबाइल पे क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात सुन रहा है और रेस्पॉन्स दे रहा है। उस कंडीशन में बोथ वे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ सिंगल वे कम्युनिकेशन है, तो ये हमारा इंटरेक्टिव के अंतर्गत आएगा, जबकि ये इंटरेक्टिव में नहीं आएगा। ये इंटरेक्टिव का दूसरा पार्ट होगा जो वन वे के अंतर्गत रहे। ठीक है, आगे आते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन पर। कम्युनिकेटिव फंक्शन, अब कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये भी इंफॉर्मेटिव जैसा ही है, लेकिन ये एक साइड का भी हो सकता है, वन साइडेड रखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। क्या कहते हैं ना, लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ मीडियम फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स टू अदर्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री communicate his views, plan, projects and progress of nation on 15th August and on other special occasion as like in pandemic disease corona period. Many time our prime minister addressed to us and appealed to us to escape ourselves from corona, to use the mask, to keep the social distancing, to use the sanitizer and so many things. तो ये सब लोग बताने के लिए वन साइडेड प्रोसेस है, बट दूसरी साइड उसको समझा जा रहा है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ही हिस्सा हो जाएगा। एज सपोज इफ यू आर रीडिंग अ डेली न्यूज़पेपर, कम्युनिकेशन is going on, events and developments in written form. The radio and television news items also communicates the news in speech form. Some code languages is also used in the communicating message during war time. तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, वन साइड से गया और दूसरी साइड पहुंच गया। अगर दूसरी साइड वाले ने समझ लिया, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर वो नहीं समझ रहा है तो फिर वो नहीं होगा। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिजर्वेटिव फंक्शन। प्रिजर्वेटिव फंक्शन मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है सुरक्षित या संरक्षित करना। संरक्षित का मतलब है किसी चीज को संभाल कर रख देना। अब क्या संभाल के रखेंगे लैंग्वेज के अंदर, है? क्या है लैंग्वेज में? लैंग्वेज इज गॉड गिवन गिफ्ट और बोन टू ह्यूमन बीइंग्स। जो लैंग्वेज आपके पास है वो किसी एनिमल के पास नहीं है। नो अदर एनिमल एंड स्पीसीज हैव दिस प्रिविलेज। मैन अलोन यूज लैंग्वेज फॉर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। और इस नॉलेज को वी वांट टू प्रिजर्व फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो वी वांट टू record our views, ideas in book form और in audio form। बहुत सारी चीजें हैं जो किताबों के द्वारा राइटर्स ने लिखी हैं, और still we are also today reading the writers of 100 and thousands years ago they wrote। जो उन्होंने लिखी हैं हजारों साल पहले, हम उनको आज भी पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़ते पढ़ते उसकी जो फीलिंग थी उस समय की, उसको आज भी महसूस करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव फंक्शन। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने नॉलेज को कहीं आगे संभाल के रखूं और उसको लेके जाऊं, और आने वाले बच्चे इस नॉलेज से समझें, सीखें, देखें। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। कुछ फंक्शंस आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप देखिएगा और पढ़िएगा, आराम से रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।
Till then, take care and stay healthy. Have a nice day.